Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss the chapter number 12, that is organic chemistry, some basic principle and technique. This is the part first video. The element carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bond with the other carbon atom. It also forms covalent bond with atom of other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogen. This atom is also known as a heteroatom. The resulting compound are studied under a separate branch of chemistry, organic chemistry. यानी basically organic chemistry is the branch of chemistry in which study of compound of carbon. और carbon के पास catenation property है. It means डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. नाउ जनरल इंट्रोडक्शन. अराउंड द ईयर 1780 केमिस्ट बिगन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्रिपेयर फ्रॉम अ मिनरल सोर्स. यानी उस टाइम ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन होंगे? लिविंग बीइंग से. लिविंग बीइंग का मतलब प्लांट एंड एनिमल. एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन होंगे? नॉन लिविंग से. नॉन लिविंग का मतलब मिनरल सोर्सेज. बर्जीलियस, अ स्वीडिश केमिस्ट, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compound. और बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी जिसको हम VFT भी कहते हैं. According to this theory, vital force, vital का मतलब mysterious force, was responsible for the formation of organic compound. कि organic compound को हम laboratory में prepare नहीं कर सकते क्योंकि उसके formation में एक vital force यानी एक mystery force responsible है. However, this notion was rejected in 1828 when F. Wohler synthesized an organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanide. रिएक्शन आपको यहाँ पे विजिबल है. NH4CNO, दिस इज द अमोनियम साइनेट. उसको उन्होंने हीट किया, किन्होंने? वॉलर साइंटिस्ट ने. और उसको इट मीन्स इसमें एटम ने अपना रीअरेंजमेंट किया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन हो गया लेबोरेटरी में. तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई by the formation of urea by the inorganic compound ammonium cyanide in the laboratory. Now next topic is tetravalence of carbon. Hybridization influence the bond length and bond enthalpy strength in compound. The sp hybrid orbital contain more s character and hence it is a closer to its nuclei. कितना परसेंटेज एस करेक्टर है? sp में 50%. एंड फॉर्म अ शॉर्टर एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड. एक तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी बट स्ट्रोंग रहेगा देन sp3 से, क्योंकि sp3 में जो परसेंटेज एस का 25%. The sp2 hybrid orbital is intermediate in s character between the sp and sp3. sp2 के लिए परसेंटेज s का 33.33% जो कि इंटरमीडिएट है sp3 का और sp का. Hence the bond length and enthalpy of bond it form are also intermediate between them. The change in hybridization affect the electronegativity of carbon. यानी परसेंटेज एस से हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था. ग्रेटर द एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस करेक्टर के.
जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। Thus, a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that of the possessing of sp2 and sp3 hybrid orbital. Now, next topic is structural representation of organic compound. It means organic compound को हम किस तरह से represent करें by the chemical formula. Structures of organic compound are the represented in several ways, like the Lewis structure या dot structure, comma dash structure. Single dash represent a single bond, double dash is used for the double bond, and the triple dash represent the triple bond. Lone pair of electron on heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen means fluorine, chlorine, bromine, iodine may or may not be shown. Such structural representation are called the complete structural formula. It means ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम एटम के सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें, और अगर उस एटम पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो हम उसको भी अगर रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी हर बॉन्ड को, हर लोन पेयर को हम अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है। लाइक हम एग्जांपल की बात करें, लाइक इथेन, वी नो वेरी वेल, हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, और हमने जितने भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। लाइक इथीन, एल्कीन का एग्जाम्पल है, क्लास 10th में हमने पढ़ा था और उसका फॉर्मूला हमने ड्रॉ भी किया था। तो हमने यहाँ पे हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ, यानी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इथीन का। सिमिलरली अगर यहाँ पे लोन पेयर है, जैसे हम बात करें मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे साथ में, तो इट मीन्स ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी फर्दर एब्रीवेटेड बाय ओमिटिंग सम or all the dashes representing covalent bond and by the indicating the number of identical group. अब सपोज करो फॉर्मूला ऐसा है कि उसमें कुछ ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी आइडेंटिकल ग्रुप बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कुछ बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करें, कुछ को नहीं करें, तो इट मीन्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसको नहीं। तो ऐसा फॉर्मूला क्या कहलाएगा, इट मीन्स अटैच टू द एटम बाय सबस्क्रिप्ट the resulting expression of compound is called the condensed structural formula. तो ऐसा फॉर्मूला क्या कहलाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाएगा, क्योंकि हमने कुछ बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है और जो आइडेंटिकल ग्रुप है उसको हमने सब स्क्रिप्ट में नंबर से डिटरमाइन किया है। लाइक हम बात करें इथेन, एक फॉर्मूला आपको इथेन का ये फॉर्मूला दिख रहा है कंप्लीट, और एक इथेन का फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है। सिमिलरली इथीन को हमने सारे बॉन्ड ना दिखाकर केवल डबल बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये इथीन का क्या कहलाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाएगा। लाइक मिथेनॉल, अब हमारे ऊपर है कि हम लोन पेयर रिप्रेजेंट करें कि नहीं करें। ओके, इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन। अब तीसरे तरह का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन। लेकिन जो उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिगजैग मोशन में। द ओनली एटम स्पेशली रिटर्न आर ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। लाइक हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो रिजल्ट जो रिमेनिंग एटम है लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, उसको तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें बात करें हम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो लाइक हम एग्जांपल की हम बात करें, एक आपको एग्जांपल गिवन है लाइक देख CH3 CH2 CH, देन CH2 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 CH3, और हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक CH3 लगा हुआ है, और उसको मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, तो इट मीन इस सारे फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो हम उसको तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं। तो रिमेनिंग जो बॉन्ड है जिगजैग फॉर्म में, लाइक आपको दिख रहा है कि एक ऊपर की ओर, तो ये हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लाइक वन बॉन्ड लाइन, सेकेंड बॉन्ड लाइन, थर्ड बॉन्ड लाइन, 4 5 6 7। सिमिलर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7,
और एक लाइन कहां से निकल रही है, इस थर्ड नंबर वाले कार्बन से, तो 1 2 3 थर्ड नंबर वाले कार्बन से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस बी वाले का, जो सी एग्जाम्पल है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो टर्मिनल डॉट है, ये टर्मिनल डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मैथिल का मतलब CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक दिस। ये टर्मिनल पे आपको CH3 दिख रहा है, CH3 CH3, ओके। नाउ इन साइक्लिक कंपाउंड मीन्स टर्मिनल जो एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइंट हो, तो एक साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इन साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बी गिवन एज, आपको रिप्रेजेंट हो रहा है लाइक दिस। इसको हमने किस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अदर एटम प्रेजेंट ही नहीं, सिंपल सा हम यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पे लाइन का इंटरसेक्ट हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, लाइक दिस। हर कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 2 वैलेंसी बॉन्ड से फुलफिल हो रही है, रिमेनिंग 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगी, लाइक दिस। सिमिलर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अनदर एग्जांपल देखें, इट मीन्स यहाँ पे जो हमने कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको हम लाइक दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब दो स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं तो दो स्ट्रक्चर को सिमिलरिटी के लिए ये इक्वलिटी का साइन होता है, 3 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट मीन्स 3D फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक इन दिस फॉर्मूला द सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। जो बॉन्ड प्लेन के अबव की ओर होगा उसको हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड वेज का एक इंडिकेटर है, इंडिकेशन है। टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी वो बॉन्ड क्या होगा, ऑब्जर्वर की ओर होगा। द डैश वेज, अब डैश वेज को हम किस तरह यूज करेंगे, इज यूज टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ अ प्लेन ऑफ द पेपर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो बॉन्ड प्लेन के नीचे की ओर है यानी ऑब्जर्वर से दूर की ओर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश वेज। ये जो सिंबल है डैश वेज को इंडिकेट करता है। Wedges are shown in such a way that the broad end of the wedge is towards the observer. The bond lying in the plane of paper are depicted by using a normal line. और जो बॉन्ड प्लेन में होंगे उनको सिंपली हम लाइन से डिनोट करेंगे। तो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन पेपर हैज बीन शोन, यानी जो 3D डायग्राम है उसको हम पेपर पे 2D पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक दिस। मीथेन, वी नो वेरी वेल, मीथेन में कार्बन और कितने बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के, 4, लाइक दिस। अब उसमें से 2 बॉन्ड हमने प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिए बाय द सिंगल लाइन। तो ये जो सिंगल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों बॉन्ड क्या है, प्लेन में है। अब एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर की ओर है, अबव यानी ऑब्जर्वर की ओर, तो उसको हमने सॉलिड वेज से इंडिकेट किया है। और जो 4 हाइड्रोजन है वो प्लेन के बैक साइड यानी ऑब्जर्वर से दूर है, तो हमने वेज डैश का यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे 3D डायग्राम, 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मॉडल्स। It means molecular models are physical device that are used for a better visualization and perception of 3-dimensional shape of organic molecule. It means बहुत से जो स्ट्रक्चर हैं 3D फॉर्म में रहेंगे तो उसको विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसको यूज करेंगे, जिस फिजिकल डिवाइस को यूज करेंगे, दिस फिजिकल डिवाइस नोन एज अ मॉलिक्यूलर मॉडल। These are made of wood, plastic या metals and are commercially available. Okay, commonly 3 type of molecular models are, 3 तरह के बेसिकली मॉलिक्यूलर मॉडल हम बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। लाइक नंबर 1 फ्रेमवर्क मॉडल, नंबर 2 बॉल स्टिक मॉडल, नंबर 3 स्पेस फिलिंग मॉडल। अब ये तीनों क्या हैं इसको हम देखते हैं। नंबर 1 इन द फ्रेमवर्क मॉडल, ओनली द बॉन्ड्स connecting the atom of a molecule not the atom themselves are shown. It means केवल इसमें बॉन्ड को बताया जाएगा, एटम को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। लाइक दिस, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर किसकी है यहाँ पे, फ्रेम वर्क मॉडल की। इट मीन्स केवल बॉन्ड को यहाँ पे इंडिकेट किया गया, एटम को रिप्रेजेंट नहीं किया गया।
दिस मॉडल एम्फेसाइज द पैटर्न ऑफ बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल व्हाइल इग्नोरिंग द साइज ऑफ एटम। अब नंबर सेकंड की बात करें, ये तो नंबर 1 था, अब नंबर सेकंड बात कर रहे हैं हम इन द बॉल स्टिक मॉडल। बोथ द एटम एंड द बॉन्ड आर शोन, इसमें हम एटम को भी रिप्रेजेंट करेंगे और बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बॉल रिप्रेजेंट द एटम एंड द स्टिक डिनोट द बॉन्ड। बॉल जो होगी वो एटम की साइज को रिप्रेजेंट करेगा और स्टिक डिनोट करेगा बॉन्ड को। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एग्जाम्पल इथीन, कैन बेस्ट बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग अ स्प्रिंग इन प्लेस ऑफ स्टिक। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें हम स्प्रिंग लगा के उसको एक्सप्लेन करेंगे। These model are refer as to ball spring model like this। आपको रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर का जो मॉडल है बॉल एंड स्टिक मॉडल, कि एटम को हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया रखा है, बॉल से, और जो बॉन्ड है उसको हमने स्टिक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ नंबर 3 की हम बात करें, नंबर 3 द स्पेस फिलिंग मॉडल emphasize the relative size of each atom based on its van der Waals radius। बॉन्ड आर नॉट शोन इन दिस मॉडल। अब तीसरे नंबर में हमने बॉन्ड को इग्नोर कर दिया है और पूरा फोकस हमको किस पे रहेगा, एटम की साइज पे। लाइक दिस स्पेस फिलिंग मॉडल दिख रहा है इसमें, बॉन्ड लेंथ को यानी बॉन्ड को हमने इग्नोर कर दिया है, टोटल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटम के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है। इट कन्वे द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। In addition to this model, computer graphics can also be used for the molecular model। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर को भी यूज करना चाहें, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मॉडल को रिप्रेजेंट करने में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो, जिसको हमने क्लास 10th में भी स्टडी किया हुआ है। किस तरह से क्लासिफाइड कर रखा है, नंबर 1 ओपन चेन कंपाउंड, जिसको हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे, यानी जो टर्मिनल के जो एटम रहेंगे वो फ्री रहेंगे। नंबर 2 क्लोज्ड या रिंग कंपाउंड, जिसको हम साइक्लिक भी कहेंगे, यानी जो टर्मिनल के जो एटम है वो आपस में बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो जाएंगे, एक साइक्लिक फॉर्म का रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो साइक्लिक है उसको हमने फर्दर से क्लासिफाइड कर रखा है एलिसाइक्लिक और सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक जो है उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है होमोसाइक्लिक, यानी अगर सारे एटम सेम है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इट मीन लाइक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इट मीन कार्बन एसेंशियल है, अगर वो चेन साइक्लिक चेन कार्बन से ही मिलकर बनी हुई है, सारे एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। लेकिन सपोज करो कोई एक एटम अलग आ गया, जैसे हिट्रियो एटम में बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन में से कोई एक एटम आ गया, तो वो कौन सा कहलाएगा, हिट्रियोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो ये हमने नंबर 1 कंपाउंड देखा साइक्लिक में, जिसको हमने एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक में 2 टाइप है, होमोसाइक्लिक और हिट्रियो। नेम से मालूम पड़ रहा है, होमो मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, हिट्रियो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अब साइक्लिक में नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड भी है, एरोमेटिक यानी एरोमा, एरोमा से लिया गया। अब ये 2 टाइप में क्लासिफाइड है, एक तो बेंजीनोइड कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, एंड सेकंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग बेसिकली आपने क्लास 10th में देख रखा है, बेंजीन का फॉर्मूला लाइक दिस, हम इसको इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, यानी डबल बॉन्ड किस फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म में, जिसको हमने 10th क्लास में C6H6 भी कहा था। तो अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, बेंजोनेट कंपाउंड कहलाएगा, और बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड कहलाएगा। अब नंबर 3 इज दैट हिट्रियोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें हिट्रियो एटम प्रेजेंट है तो क्या कहलाएंगे, हिट्रियोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ओके, अब इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज दैट असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, दीज कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कहां से लिया गया, एलिफर से, यानी सबसे पहले इन कंपाउंड को कहां से ऑब्टेन किया गया था, एलिफर, यानी एनिमल फेट से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट या ब्रांच चेन कंपाउंड, लाइक एग्जांपल की बात करें, इथेन,
ठीक है। अब नेम हमने इथेन कैसे लिखा वो हम अभी डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। लाइक यहाँ पे आपको ब्रांच भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, आइसोब्यूटेन, लाइक दिस एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। बेसिकली आप IUPAC क्लास 10th में पढ़ के आए हो और हमको 11th में भी यहाँ IUPAC पढ़ना है, तो इट मीन्स में स्ट्रेट चेन भी प्रेजेंट होगी और ब्रांच चेंज के कार्बन भी प्रेजेंट रहेंगे। नंबर सेकेंड इज दैट साइक्लिक, जिसको हम क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड भी कहेंगे, यानी टर्मिनल के जो एटम है वो आपस में बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो रहे हैं। अब जो इसमें हमको पढ़ना है नंबर ए एलिसाइक्लिक, यानी साइक्लिक में हमने 2 टाइप देखे थे, एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक की बात करें, एलिसाइक्लिक जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एलिफेटिक साइक्लिक, यानी स्ट्रक्चर साइक्लिक है, और एलिफेटिक मतलब एलिफर, यानी वही सबसे पहले हमने इसको कहां से ऑब्टेन किया था, एनिमल फैट से। तो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। होमोसाइक्लिक, लाइक एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो जो है हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं, हम IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे। प्रोपेन क्योंकि थिन कार्बन प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, आफ्टर साइक्लोहेक्सेन। समटाइम एटम अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट द रिंग, हेट्रियोसाइक्लिक, यानी अगर साइक्लिक कंपाउंड में हम एलिसाइक्लिक की बात कर रहे हैं और उसमें अगर हेट्रियो एटम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रियोसाइक्लिक कहलाएगा। लाइक एग्जांपल टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है कि उसमें साइक्लिक फॉर्म में एक ऑक्सीजन हेट्रियो एटम प्रेजेंट है, ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, हेट्रियोसाइक्लिक का एग्जाम्पल कहलाएगा। दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द दोस ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, यानी इनकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर रहेगी, एलिफेटिक कंपाउंड के ही सिमिलर रहेगी। अब बी टाइप देख रहे हैं हम साइक्लिक कंपाउंड में, एरोमेटिक, इट मीन्स दिस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड लाइक बेंजेनॉइड, क्योंकि एरोमेटिक में नंबर ए पार्ट हमने बेंजेनॉइड ही देखा, यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो हैव अ हेट्रियो एटम इन द रिंग, सच कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रियोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हेट्रियो एटम कौन कौन से हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हेट्रियो एटम अगर प्रेजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रियोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल की देखें, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये नेम से क्लियर है, बेंजीन प्रेजेंट होगी, क्लियर दिख रहा है आपको बेंजीन। ये एनिलीन है जिसमें हमने एक बेंजीन के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, NH2 से, ओके। अब 2 बेंजीन को हमने फ्यूज कर रखा है, नेफ्थलीन। नॉन बेंजीनॉइड की बात करें जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो रिंग है कितने कार्बन से मिलकर बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड कहलाएंगे, इट मींस प्रोपोन का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हेट्रियोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन उसमें हेट्रियो एटम प्रेजेंट है, तो इट मींस लाइक दिस फ्यूरेन का फॉर्मूला आपको याद करना है, थायोफिन, सल्फर आ रहा है, पिरिडीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेंजीन में अगर एक कार्बन की जगह हमने नाइट्रोजन रख दिया, पिरिडीन को हम लाइक दिस C5H5N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज, जिसको हम फैमिलीज भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। The functional group is a atom or a group of atom joined to the carbon chain which is responsible for the characteristics chemical property of organic compound। यानी इसको भी हमने क्लास 10th में स्टडी किया, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करें। लाइक एग्जांपल की बात करें OH, दिस इज द एल्कोहल, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। अगर OH ग्रुप ज्वाइंट हो रहा है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में, अल्कोहल की कैटेगरी में। एल्डिहाइड फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन इज CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट बाय द COOH। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। A group or series of organic compound each containing the characteristics functional group form a homologous series। यानी ऐसी सीरीज, कंपाउंड की ऐसी सीरीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे
लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, एंड द मेंबर ऑफ सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस, होमोलोगी। ठीक है, अब वो जो मेंबर है वो क्या कहलाएंगे, होमोलोगी कहलाएंगे। लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कोहल का, जो फर्स्ट मेंबर होगा एल्कोहल का लाइक दिस CH3OH रहेगा। ठीक है, तो OH ग्रुप प्रेजेंट यानी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं इसके नेक्स्ट मेंबर की बात करूं तो नेक्स्ट मेंबर हम होमोलोगस कैसे बनाएंगे, इसमें हम CH2 ग्रुप को ऐड कर दें, तो इट मींस CH3CH2OH, ये इसका सेकेंड मेंबर कहलाएगा एल्कोहल का। अब मुझे थर्ड मेंबर ऐड करना है, थर्ड मेंबर बताना है, तो वहां पे इसमें मैं किसका ऐड कर दूं, CH2, यानी सक्सेसिव मेंबर में CH2 ग्रुप का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, लाइक दिस CH3 CH2 CH2OH, और इस तरह से डैश करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये एल्कोहल का क्या बता रहा है, ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब में OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन सक्सेसिव मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल सेम रहेगा। जैसे आप एल्कोहल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एल्कोहल को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, CnH2n+1 और हमने यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये जनरल फॉर्मूला है इस होमोलोगस सीरीज का। आप यहाँ पे n की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1, जैसे आप पुटअप करोगे ये सीरीज आपको ऑब्टेन हो जाएगी। यानी होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप, सक्सेसिव में जो डिफरेंस है CH2 ग्रुप का है। अब हम मास निकालना चाहें तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, CH2 है यानी 1 मल्टीपल बाई 2, तो 12 + 2 14, यानी सक्सेसिव मेंबर में हम बात करें कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रहेगा, 14 U का रहेगा। यानी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये 2 कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस रहेगा, 14 U। फिर नेक्स्ट 2 की बात करें सक्सेसिव, सक्सेसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ homologous series of organic compounds, some of these are alkanes। Similarly next हम बात करें alkenes, haloalkane, alkanols, alkanals, alkanones, alkanoic acid, amines। ओके